Namaste children, very warm greetings to you from RNH. Today we are going to be doing a very important chapter, the human immune system and immunity. There are a lot of important questions from this particular chapter that has been asked. If you have seen our RNH immunity last 10 years PYQs, please check out that video wherein we tell you the different PYQs that was done in a very short presentation, and that has shown last time 2025 में almost 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे. हमने उसको लड्डू क्वेश्चंस बोला था. तो लड्डू क्वेश्चंस यानी कि पूरा like you get full marks from those questions. So these are the questions which you are going to get almost completely 12 marks was given in the last time 2025 एग्ज़ाम में. हमें पूरा लड्डू क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस पूछा गया था, और आज यहाँ पे हम पूरा लास्ट 10 इयर्स में जो क्वेश्चंस था इम्यून सिस्टम इम्यूनिटी में सिर्फ उसका क्वेश्चंस डाला है, और हर साल 1 या 2 क्वेश्चंस आपको इम्यूनिटी से आता है. सिर्फ ये सब टॉपिक ह्यूमन हेल्थ और डिजीज़ का जो 12th स्टैंडर्ड चैप्टर है, ये एक चैप्टर से 12th स्टैंडर्ड में एक छोटा सा चैप्टर में से आपको कम से कम 8 या 12 मार्क्स का क्वेश्चंस आपका पूरा 100% गारंटी है. तो ये पर्टिकुलर वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको. यहाँ पे हम पूरा आपका ह्यूमन इम्यून सिस्टम देखेंगे कि कैसा कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. ह्यूमन इम्यून सिस्टम, जैसे कि आपको पता है कि इट गिव्स यू इम्यूनिटी टू द बॉडी बाय रिकग्नाइजिंग एंड रिस्पॉन्डिंग कैन रिमेंबरिंग द फॉरेन एंटीजन. जब भी बाहर से कोई फॉरेन एंटीजन आता है, या तो वो डस्ट रह सकता है, बैक्टीरिया सकता है, वायरस रह सकता है, तो आवर बॉडी उसके अगेंस्ट रिएक्ट करता है. वो उसको रिकग्नाइज करके उसको बाहर भेजने के लिए रिएक्ट करता है. तो दिस प्रोसेस ऑफ ट्राइंग टू प्ले अ रोल इन ट्राइंग टू रिजेक्ट or prevent a foreign body from attacking you. It could be a virus, it could be a bacteria, it could be a pathogen, it could be a chemical substance, it could be a physical substance. तो ये सभी substances के against जो body react करता है उसको immunity बोलते हैं. ये फॉर एग्जाम्पल सिंपल एलर्जिक रिएक्शन में देखें. ओके, ये एलर्जिक रिएक्शन जो होता है, तो एलर्जिक रिएक्शंस में भी आपको उसी तरह का इफेक्ट आता है कि नहीं. मुझे थोड़ा मार्कर पेन लेने दो. यस, परफेक्ट. सो इफ यू लुक एट दिस allergic reaction, that is a very important part of the allergic reaction that happens in our body, right? And autoimmune reactions that are there. And organ transplantation में बोला है. ये organ transplantation again is a very important part which is the reason why many of us develop what is called as an immune reaction, which gives you cell mediated type of reaction. ये questions बहुत बार पूछा गया है. And what does it include? It includes lymphoid organs, right? It will include lymphoid organs, it will include tissue cells and antibodies. तो ये सब कुछ बहुत important होता है जो immunity के लिए act करता है. ओके, एंड जैसे कि lymphoid organs आपने बोला था, these lymphoid organs are produced in one place, they move to another place where they mature, where they become antigen presenting, where the antigens को attract करना के लिए वो mature हो जाता है. तो इसको हम primary और secondary lymphoid organs बोलते हैं, right? So we call them primary or secondary lymphoid organs. Okay, so the primary lymphoid organs are those where the particular cells, okay, the lymphoid cells are produced, and the secondary ones are the ones which are basically where the cells undergo maturation. Okay, right? So these are the two important parts. So the primary lymphoid organs क्या है? Especially the bone marrow and the thymus. What are they? The bone marrow and the thymus. These two, remember that. And where is the bone marrow? It is inside the bone. Okay, it's the hollow portion of the bone within which the blood cells are formed, and that is called the bone marrow, where the RBCs, blood cells, WBCs, as well as the WBCs include the lymphocytes, which actually the T lymphocytes, B lymphocytes जो form होते हैं वो भी आपको blood में ही आता है from the bone marrow.
The thymus, which is basically a gland, where is it present? Just under the heart, राइट. सो इन द मीडियास्टिनम बोलते हैं. इस पार्ट जो सेंटर में है उसको मीडियास्टिनम बोलते हैं. तो दिस पार्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट in all of us, but it tends to become more important in children where it grows, and this particular part is needed for your maturation of your B lymphocytes. So that is another place which is also a primary lymphoid organ, because it not only produces B lymphocytes, it also plays a role in maturation. Okay, right. Right. So the primary lymphoid organs, as we all said, yes, there are two parts. We will continue with that. That is the primary bone marrow as well as the thymus. Right. So these are the two important things which are your primary lymphoid organs. The secondary lymphoid organs are especially what? The spleen and the lymph nodes. What are they? The spleen and the lymph nodes. The spleen and the lymph nodes. Okay, where is the spleen present? Here, right in the upper part. Okay, under the left hypochondrium जो बोलते हैं, just below the stomach. Okay, on the left hand side, that is basically the place, or a reddish structure through which the red blood cells also gets destroyed in the spleen. मलेरिया में जो होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि मलेरिया में which organ, okay, is responsible for the destructions of RBCs. Okay, so that is the spleen. And because of the destructions of RBCs, you develop an anemia in malaria. ये भी याद रखना. So the spleen plays a very important role as a secondary lymphoid organ where there is a maturation of the lymphocytes. Okay, and what is the role of the maturation? ये cells को ऐसे बना देते हैं कि वो एंटीजन को बाइंड कर सकते हैं. So it is making it mature so that the antigens will bind to it, and these cells become what are known as effector cells. So what do the primary lymphoid cells become? They become the effector cells. So effector cells यानी कि जो cells which can produce immunity, and so therefore you call them effector cells. Okay, right. The secondary lymphoid organs also include few other cells, primarily the spleen and lymph nodes, but you also have the other two type of cells, the tonsils, right, and the Peyer's patches. These are another two important things, the tonsils and the Peyer's patches. Where are tonsils present? They are present at the side of the mouth. जैसे क्या करते हैं ना, वहाँ पे दिखता है जैसे कि टंग लाइक प्रोसेस. दिस सेंट्रल टंग लाइक प्रोसेस जो आपको दिखता है उसको हम ऊला बोलते हैं. क्या बोलते हैं? करेंगे तो सेंटर में आपको दिखाई देगा. ओके, किसी के माँ बाप के ऊपर टॉर्च लगा के देख लो, मुंह में आपको सेंटर में that process which is there projecting, उसको uvula बोलते हैं. uvula. On the sides of the uvula, on either sides, you have a tissue called the tonsils. ये जब बढ़ जाता है इसको tonsillitis भी बोलते हैं. जिनको टॉन्सिल्स का इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो तब टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं. कभी कभी उसका ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है. ओके, अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो गया तो तो वहाँ पे टॉन्सिल्स आता है और उसके साथ में एडिनॉइड्स भी आता है. तो ये भी एक तरह का ग्लैंड है जहाँ पे lymphocytes present होता है, but tonsils are also the secondary lymphoid organ where the primary cells can mature. Other important places which is maximum present in your body is called the malt. क्या बोलते हैं इसको? Malt बोलते हैं. What is malt? Okay, your MALT. Okay, very important. Remember that. Okay, MALT. Okay, your malt. Okay, so this malt plays a very important role basically in this malt is a very important structure which is basically for your
सो यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ. सो माल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स व्हाट इज इट, म्यूकोसा एसोसिएटेड. इसको क्या बोलते हैं, म्यूकोसा एसोसिएटेड. ओके, द अदर थिंग इज ऑल्सो you call them, the one which is associated in the stomach is known as gut associated. So galt, इसका another नाम है galt. ओके, वो भी बहुत important होता है. ओके, okay, so we were talking about this particular thing called malt. Okay, right. So what is malt or galt? Okay, these are two important things, which is gut associated lymphoid tissue. ये जो gut associated lymphoid tissue जो है, okay, this is basically totally related to the intestines. So जो intestines में है वहाँ पे mucosa है, जो mucus में है, वहाँ से you get this what are called as villi, which are like multiple projections, and just behind them you get these what are called as lymphoid tissue. Okay, so multiple pockets of lymphoid tissue round ऐसे रहता है, और इसको हम Peyer's patches बोलते हैं. Okay, so the Peyer's patches are patches which are present in the intestine. तो totally malt जो है ये mucosa associated होता है. ये आपको gut यानी कि पूरा stomach, small intestines, stomach, large intestines में रहता है. उसके साथ में also in the respiratory tract. Okay, even the respiratory mucosa उसमें भी lymphoid tissue रहता है, और urogenital tract. तो ये 3 ट्रैक में आपको म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू माल्ट मिलेगा. सो माल्ट जो है 3 जगह में है, राइट, इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और आपको यूरोजेनिटल ट्रैक्ट. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो दीज आर द 3 एरियाज वेर यू कैन गेट द माल्ट. राइट, परफेक्ट. तो इसके अलावा हमें देखना है कि द अदर प्लेस वेर यू एक्चुअली कैन गेट अदर गाल्ट इज द Peyer's patches. वेर यू गेट द अदर थिंग्स आर द Peyer's patches. ओके, राइट. Okay. Among the secondary lymphoid organs, the lymph nodes, we said lymph nodes are present all throughout our system. They also act as secondary lymphoid organs. So where are they? They are present at different parts, from the leg, from the bottom part of the leg also you can start moving up. There are a number of lymph nodes which are present. Those that are present at your groin are called the inguinal lymph nodes. So what are the near your neck, what you get are called cervical lymph nodes. राइट, इफ़ यू हैव एन इन्फेक्शन ऑफ द माउथ, तो वहाँ से आपको लोकल जो कान के नीचे रहता है या थ्रोट के नीचे रहता है, यहाँ पे सबमैंडिबुलर नोड्स आता है. तो ये नोड्स में, ये लिम्फ नोड्स में इन्फ्लेमेशन आके बैठ जाता है. तो द नोड्स बिकम द लोकल पॉइंट where the lymphatic system will actually mature, where the microorganisms get trapped. So they help in basically trapping the microorganisms, okay, or other antigens in the local site. ओके, वहाँ पे ट्रैप करके वहाँ पे लिम्फोसाइट्स अग्रीगेट हो जाता है, तो वो सूजन होता है. तो समटाइम्स व्हेनेवर इफ यू हैव अ थ्रोट इन्फेक्शन, योर लोकल सर्वाइकल ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड जो बोलते हैं, अंडर द मैंडिबल या नियर द आई, ईयर्स, ओके, ईयर इन्फेक्शन है, तो यू गेट पोस्ट ऑरिकुलर लिम्फो एडिनोपैथी करके, यानी कि वहाँ पे लिम्फ ग्लैंड्स जो है बढ़ जाता है. Okay, so the local nodes help to trap the microorganisms. That is another important point. Okay, we already told you about this malt, which is very present. I told you this, right? It is therefore present in different tissues. Okay, what are all the tissues that did I tell you?
the different tissues that on which it is present are the respiratory tract, digestive tract, urogenital, and constitute 50% of the lymphoid tissue. Malt basically is 50% of the total lymphoid tissue. This is present in the mucosa, anywhere under the mucosa. और वहाँ पे ये बड़े बड़े पैचेस होते हैं जो आपको lymphoid tissue बोलते हैं, which is present behind the mucosal villi. Okay, in between the muscle layer. ये muscle layer है, तो ये muscle है, और मसल के नीचे आपको ये म्यूकोसा है. ये पूरा म्यूकोसा में उसके नीचे के जगह पे यहाँ पे आपको लिम्फॉइड टिश्यूज पाए जाते हैं. ओके, राइट. Good. So having told that, we go to the next part wherein you're going to talk about the immunity as a whole. Okay, what are the different types of immunity? What is innate immunity? What is acquired immunity? Okay, so all these things we are going to be discussing in the next subsection. ओके, सो जैसे कि यहाँ पे बोला कि जो इम्यूनिटी आपको पैदाइश से है, ये क्वेश्चंस आपको लास्ट ईयर पूछा गया था, है कि नहीं? दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द लास्ट टाइम एज टू व्हाट इज द इम्यूनिटी दैट इज प्रेजेंट एट बर्थ एंड यू कॉल इट, उसको क्या बोलते हैं? उसको इन्नेट इम्यूनिटी बोलते हैं. ओके, और व्हाट टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज इट? इज इट अ पैसिव इम्यूनिटी, स्पेसिफिक इम्यूनिटी, और इज इट एन एक्वायर्ड इम्यूनिटी? इट इज अ टाइप ऑफ अ immunity which is present at birth due to different things. One part of it is also because of antibodies which are coming from the mother to the child, and also the child as such has got certain barriers. बहुत सारे बैरियर्स है जो एक तरह का इम्यूनिटी देता है, और ये बैरियर्स पैदाइश से है तो इट इज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, तो उसकी के लिए उसको इन्नेट इम्यूनिटी बोलते हैं. Is it due to only one particular bacteria, one particular antigen? No, it is a generalized immunity. वो डस्ट रह सकता है, वो किसी भी पैथोजन के लिए रह सकता है, एक तरह का जनरल इम्यूनिटी रहता है, नॉट स्पेसिफिकली टू एनी पर्टिकुलर एंटीजन और अ पर्टिकुलर एंटीबॉडी. तो उसी के लिए उसको हम इनबॉर्न इम्यूनिटी, जो इन्नेट इम्यूनिटी है, उसको नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी बोलते हैं. सो दिस इज अ नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ अ इम्यूनिटी. वेरएज द अक्वायर्ड इम्यूनिटी जो अडेप्टिव इम्यूनिटी है, अडेप्टेशन यानी कि क्या, एक तरह का एंटीजन आ जाता है, उसके ऊपर इम्यूनिटी बढ़ने लगता है, तो उसको हम अक्वायर्ड या अडेप्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं, और ये पैसिव इम्यूनिटी होता है. ओके, सॉरी, ये एक्टिव इम्यूनिटी रहता है, और ये एक्टिव, यहाँ पे भी एक्टिव इम्यूनिटी है. इट इज़ बोथ एक्टिव एंड पैसिव, बट इट इज़ नॉन स्पेसिफिक. whereas यहाँ पे इट इज़ ओनली एक्टिव एंड इट इज़ ऑलवेज स्पेसिफिक. तो इसको हम स्पेसिफिक इम्यूनिटी बोलते हैं, whereas the one which is नॉन अडेप्टिव, ओके, इज नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी. तो ये हमारा नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी हो गया, whereas acquired हमारा स्पेसिफिक इम्यूनिटी हो गया. राइट, परफेक्ट. We go back to the innate immunity, and so जिस तरह से innate immunity है, जैसे बोला कि ये नॉन स्पेसिफिक है, it basically provides you a barrier. That is the main thing you need to remember, is that it basically provides you a barrier, produce करता है, which is very important. Okay, it produces a type of a barrier. Okay, and this barrier, it prevents the foreign agent from entering our body. So what are the different types of barrier? There are 4 types of barrier. एक physical होता है, that means it's a mechanical barrier, तो it basically prevents antigens from entering. दूसरा physiological होता है, तीसरा cellular होता है, और चौथा cytokine होता है. तो there are 4 types: physical, physiological, cellular और cytokine. Okay, 2P, 2P, 2C. सिंपल. सी में सेल्यूलर, सेल का और केमिकल का, तो साइटोकाइन. पी में एक फिजिकल और एक फिजियोलॉजिकल, यानी कि फंक्शन. वन इज जस्ट फिजिकल, द अदर वन इज अ फंक्शन, सो उसको फिजियोलॉजिकल.
तो बहुत आसान है रिमेंबर करने के लिए, 2P 2C, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर, साइटोकाइन। सो फिजिकल बैरियर पहले देख लेते हैं। फिजिकल बैरियर, सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल बैरियर इज अवर ओवरऑल बॉडी ऑफ स्किन। बाहर से स्किन जो है इट एक्ट्स लाइक अ बैरियर, यू नो, इट इज गॉट वेरी स्ट्रॉन्ग एपिथेलियम, तो इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ पैथोजेंस। डस्ट बाहर से अंदर इजीली घुस नहीं सकता है। तो स्किन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड इज वन ऑफ द मोस्ट प्राइमरी फिजिकल बैरियर। इट इज वन ऑफ द प्राइमरी फिजिकल बैरियर. Apart from that, the mucous coating of the respiratory tract, genital tract, urogenital tract also helps to trap the microbes, and so the mucous membrane भी एक तरह का physical bacteria barrier है. Okay. The next barrier which we are going to talk about is your physiological barrier. Physiological bacteria barrier में basically you should remember three things. One, your tears. Okay, the tears play a very vital role. Okay, the tears जो है, sorry for that, yeah, so the tears play a very important role. tears के साथ आपका saliva और gastric juice. so gastric juice में क्या है? hydrochloric acid. It is an acid. HCl is present in our stomach. It has basically very low pH, तो उसके कारण it helps to kill the pathogens. Saliva, it contains lot of enzymes. Saliva will contain enzymes. Your tears also have lysozyme and other enzymes, which again is antibacterial. Okay, so therefore remember that the tears, saliva and the gut, HCl. tears, saliva और gut का HCl. So these three are very typical in producing your physiological barrier. Okay, we go to the next part, which is talking about the cellular barrier. Okay, so this next part we are going to be going to the cellular barrier. Cross this. The cellular barriers are what? All the cells that actually produce immunity, those that work against the antigen, infections, prevention of infection happens. Okay, so it helps to destroy the antigen material. The first response that occurs is from the neutrophils. Okay, the first cellular response that occurs, okay, due to immunity is from the neutrophils. They are called the first line of attack. Okay, they first go again and attack the antigen. So these are called the neutrophils. And then you have the monocytes, the macrophages. Macrophages क्या है? एक तरह का amoeba cell है. Look at that. It is the shape of an amoeba cell and literally helps to engulf the pathogen. So those that help to produce engulf, और उसको कहते हैं phagocytosis, वो खा जाता है, तो उसको macrophage बोलते हैं. And then your NK cell or natural killer cells, those produce a lot of chemical cytokines that actually kill these cells. So these cells are also type of a cellular barrier. Okay, fine. So you call these leukocytes PMNL या polymorphonuclear leukocytes, क्योंकि उसको बहुत सारे multiple nuclei है. So polymorphonuclear leukocytes as well as monocytes, NK cells and macrophages. These are the types of your cellular barrier. The cytokine barriers are those that are produced, or chemicals that are typically produced when one cell gets affected by a virus. So when one cell gets affected by a virus, some types of chemicals are produced. Chemicals produced by cells are cytokine. वो cytokine में बहुत सारे types of cytokine है. Those include interleukins, interferons. दोनों. Interleukins and other kind of inflammatory pathogens are produced which actually create fever. Interleukins जो है that will create inflammation. Interleukins produce inflammation.
but interferon, what are they? Interferon typically produced, ये question भी पूछा गया है. We have told that in our video previously on immunity PYQs, immunity 10-year PYQs जो है वीडियो में, वो जाके देख लेना. Same question was asked where virus infected cells create a cytokine protein called as interferon. And what is the role of this? It protects the other cell from getting affected by the virus. तो एक वायरस आ जाता है तो इनसाइड इंटरफेरॉन प्रोड्यूस करके इट विल रिलीज द इंटरफेरॉन्स एंड दैट गोज अटैक्स सिट्स ऑन द अदर सेल and when they sit on the other cell it prevents the virus from attacking that particular, blocks the virus replication or degrades or demolishes the virus न्यूक्लिक एसिड. वायरस का आरएनए या डीएनए है तो उसको डिस्ट्रॉय कर लेता है. एंड दैट इज डन बिकॉज द इंटरफेरॉन्स आर अटैच्ड, रिलीज्ड from one cell, they go and attach to the other cell in the receptor that produces a signal so through the genes to produce antiviral protein. जब antiviral protein produce होता है वो जाके prevents virus replication और breaks down the nucleic acid of the virus. So this is a pathway which is called as a cytokine barrier because of production of cytokine called interferon. Okay. Now we come to the next part of acquired immunity, which is acquired over a period of time. यानी कि over a period of time, birth के बाद में जो होता है. तो जब when you get infected with a virus once and because the body remembers it, so उसको हम क्या बोलते हैं? Memory. The body has a ability to remember it. तो because it has a ability to remember it, it is called memory. ये developed during lifetime. It's a specific immunity, unlike innate immunity, which is non-specific. The primary immunity or the primary response जो आता है वो low intensity रहता है. जब पहला एंटीजन आता है तो थोड़ा ही इम्यूनिटी डेवलप होता है. Some antibodies only are formed. It doesn't destroy the virus completely. But once एक बार आ गया तो द सेल्स हैज़ अ मेमोरी. वो आके रिमेंबर बोलता है, आई रिमेंबर यू, मुझे मिल गया, मुझे रेड अलर्ट मिल गया, तो मैं इस बार ज़्यादा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन उसको निकालने के लिए ज़्यादा एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करूँगा और वो रेस्पॉन्स को सेकेंडरी रेस्पॉन्स बोलते हैं जो एकदम डबल हो जाता है. इट इज़ वेरी एग्जैजरेटेड. और ये एग्जैजरेटेड रेस्पॉन्स जो सेकेंडरी टाइम व्हेन द पैथोजन इज अफेक्टेड सेकेंड टाइम उसको सेकेंडरी बोलते हैं. तो उसको ऑल्सो एनामनेस्टिक रेस्पॉन्स बोलते हैं. क्या रेस्पॉन्स? एनामनेस्टिक रेस्पॉन्स. ये याद रखना. डू रिमेंबर दिस नेम बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी tricky name and not many of them remember this. It is called as anamnestic response. Okay, so this particular thing is called as anamnestic response. Okay, so you call this anamnestic response. Which always is of a higher intensity. Okay, acquired immunity occurs because of what? Because of there are two cells. एक तो है कि B cells. B cells, you know, are antigen binding cells. Those are the cells to which the antigen binds. You have then T cells. Those T cells which are called as helper cells. Okay, when an antigen binds to a B cell, okay, उसके बाद में क्या होता है? एक helper T cell आ जाता है. वो helper T cell produces again certain chemicals. Helper T cell will again produce certain chemicals which will make this B cell to which the antigen is bound bigger and allows the B cell to produce multiple antibodies. These are called as plasma cell. So this cell is called as a plasma cell. A cell which actually grows, a B cell which actually to which the antigen bind हुआ होता है, वो B cell बड़ा हो जाता है because T cell produces certain chemicals that allow it to grow.
एक बार जब बड़ा हो जाता है then more antibodies are produced. That is why such cells are called as plasma cell. So it is nothing but a modified B cell which produce antibodies. Okay, and that happens because chemicals come from the T cell. So this is the basis by how acquired immunity is formed. B cell को एंटीजन अटैक करता है, फिर T cell साइटोकाइन्स प्रोड्यूस करके बी सेल को एक्टिवेट करता है, तो वो एक्टिवेटेड बी सेल प्लाज्मा सेल बोलते हैं, दैट प्रोड्यूसेस मोर एंटीबॉडीज. जब एंटीबॉडी बोलते हैं आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डू ड्रॉ दिस, एक 10 बार 15 बार ड्रॉ करके रखो. आपको ये जिस तरह के देते हैं कि द स्टैंडर्ड picture that you need to remember is this particular one, which is the IgG structure. जैसे टिपिकली आप देखते हैं कि देर आर 4-5 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज. व्हाट आर दे? गेम्ड, GAMED, गेम्ड. आप सभी लोग गेम्स खेलते हैं, है कि नहीं? तो उसी तरह इसको गेम्ड बोलते हैं. ओके, G, IgG, IgA, IgM, IgE and IgD. Okay, now typically IgG, E and D are very similar in structure. उसके डबल बॉन्ड्स थोड़ा डिफरेंट होते हैं, तो वो छोड़ के आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है. बट रिमेंबर दैट IgM हैज़ अ 5 पेंटावैलेंट स्ट्रक्चर. इट्स लाइक 5 एंटीबॉडीज, 5 IgG साथ में मिलाते हैं, तो इट्स अ बिग एंटीबॉडी, इट्स द लार्जेस्ट एंटीबॉडी एंड इट इज़ द फर्स्ट एंटीबॉडी, which is the first antibody that is produced due to any infection. जब होता है first antibody IgM होता है. उसके बाद में ही सेकेंडरी रेस्पॉन्स लेटर ऑन फिर से जब एंटीजन आता है तब हमें बॉडी IgG, परमानेंट एंटीबॉडी जो होता है वो IgG होता है. ये IgM कुछ देर के लिए रह के चला जाता है. तो फर्स्ट एंटीबॉडी इज IgM बट इट इज़ शॉर्ट लिव्ड. लॉन्ग स्टैंडिंग इम्यूनिटी जब आ जाता है वो IgG के कारण आता है. ओके, IgA आपने पता है, कोलेस्ट्रम, मदर्स मिल्क. ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है. तो कोलेस्ट्रम में क्या एंटीबॉडी है? तो वो IgM होता है कि नहीं? तो द डायग्राम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें आपको लाइट चेन रहता है. You have a light chain and you have a heavy chain. Okay, you have a light chain and a heavy chain. Okay, this particular inner chain जो है वो heavy chain है, और बाहर का जो chain है इसको हम light chain बोलते हैं. Okay, और ये दोनों attached होता है with a disulfide bond. Okay, there is a disulfide bond which is attaching the light chain to the heavy chain, right? Disulfide bond, it attaches the light chain to the heavy chain. How many there are there? देखो यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है. There are 2 bonds which attach a light chain to a heavy chain. Between the light chain and the heavy chain, between the light chain and heavy chain, how many you have? 2. Okay, light and heavy. Then बिटवीन द हैवी चेन एंड हैवी चेन कितना है? एक यहाँ पे हैवी चेन है, एक यहाँ पे हैवी चेन है, यहाँ पे एक बॉन्ड है, यहाँ पे एक बॉन्ड है. ओके, बिटवीन इंटर हैवी चेन आपको 2 बॉन्ड है. ओके, इंट्रा हैवी चेन कितना है? 1 2 3 4 ईच में, यानी कि 8 इंट्रा हैवी चेन. इंट्रा लाइट चेन, बिटवीन द लाइट चेन के अंदर ही कितना है? बिटवीन वन पार्ट ऑफ द लाइट चेन टू द अदर पार्ट ऑफ द लाइट चेन, अगेन यू हैव 2 2 2 2, यानी कि 4. इंट्रा लाइट चेन आपको 4. तो ये याद रखना है आपको. यू नीड टू रिमेंबर दिस पार्ट वेरी वेरी क्लियरली फ्रॉम द डायग्राम. वेरी सिंपल, आपको लाइट चेन ड्रॉ करना है, हैवी चेन ड्रॉ करना है, और यहाँ पे बिटवीन लाइट एंड हैवी आपको एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे, 2 हो गया. बिटवीन 2 हैवी चेन पहले ही टॉप में 2 डालना है, सिंपल. फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, और यहाँ पे 2 2 2
तो यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, तो 3 4 मिला के 12। सो इंट्रा हेवी चेन्स और लाइट चेन्स के बीच में आपको टोटली 12, लाइट चेन्स में 2 और 2 4, और हेवी चेन में 2 और 2 4 ऊपर और 2 और 2 4 नीचे 8। So 12 intra bonds. Out of that 8 intra heavy chain, 4 intra light chain, inter heavy 2, inter light 2. तो टोटली कितना बॉन्ड्स आपको बन गया? 12 plus 2, 14 plus 2, 16. There are 16 doubles disulfide bonds in a IgG molecule. कितना बॉन्ड्स हैं? 16 disulfide bonds. Okay, this is something very rarely told, just it is explained using the diagrams. Okay, तो जब ह्यूमोरल बॉडी आ जाता है, एंटीबॉडीज फॉर्म हो जाए, जैसे कि एंटीजन G, M, A, D ये आ जाता है, IgE जब आता है, हमने पहले बताया था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ दैट। एलर्जी जब भी होता है तो ये याद रखना कि एलर्जी जब भी आता है आपको IgE आता है। IgE, any kind of allergic response, asthma, ओके, और लाइक जैसे कि आपको सर्दी आती है, ओके, खांसी आती है, तो ये सब कुछ बिकॉज ऑफ IgE आता है। ओके, सो द ह्यूमोरल रेस्पॉन्स इज एंटीबॉडी मीडिएटेड। बिकॉज ऑफ एंटीबॉडीज जो आता है उसको ह्यूमोरल, बिकॉज वो ब्लड में मिल जाता है, तो उसी को आपको ह्यूमोरल बोलते हैं, बिकॉज ह्यूमोरल मीन्स विद इन द ब्लड। ओके, और जो सेल के कारण आता है उसको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं। बिकॉज ऑफ द टी सेल्स, बिकॉज ऑफ फैगोसाइटोसिस, बिकॉज ऑफ मैक्रोफेज एक्टिविटी, ये सब कुछ जब आ जाता है जिसको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रहते हैं। जैसे कि इवन ग्राफ्ट रिजेक्शन, ग्राफ्ट को रिजेक्ट करना होता है तो उसको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं। Okay, so humoral immunity is a type of acquired immunity in which antibodies are formed, और ये हमें पता है due to presence of blood in the plasma। और ये बात भी कभी कभी पूछा गया है, जिपमर के एक क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एंटीबॉडीज जब फॉर्म होते हैं, ओके, हाउ डू दी विच पार्ट ऑफ द एंटीबॉडी अटैचेस टू दी वायरस। ओके, एक बार एपिटोप और एंटीबॉडी रहता है, द पोर्शन विच इज अटैचिंग टू दी एंटीबॉडी इज दी पैराटोप। सो यहाँ पे एक पैराटोप होता है, एपिटोप होता है, द पोर्शन ऑफ एंटीबॉडी विच इज अटैचिंग टू दी एंटीजन इज कॉल्ड दी पैराटोप। ओके, देन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, व्हाट इज इट? इट इज बेसिकली बिकॉज द बॉडी इज एबल टू, यहाँ पे ये बात बहुत क्लियर अंडरस्टैंड करना कि ग्राफ्ट रिजेक्शन में क्या होता है, विच इज़ अ टाइप ऑफ अ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का क्लासिकल एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि इट इज़ ग्राफ्ट रिजेक्शन। और ये दिस इज मेनली बिकॉज द बॉडी इज एबल टू डिफ्रेंशिएट, बॉडी कैन डिफ्रेंशिएट, नॉट कैनॉट, कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। क्या सेल्फ क्या है, नॉन सेल्फ क्या है, बिटवीन दीज टू, ये बॉडी का एंटीजन है या बाहर का एंटीजन है, बॉडी का प्रोटीन है या बाहर का प्रोटीन है, बॉडी का टिश्यू है, बाहर का टिश्यू है, ये डिफ्रेंशिएट करता है, इट कैन डिफ्रेंशिएट, एंड दैट इज वाई it leads to rejection. If something is not part of your own body, the body wants to push it out. The body उसको बाहर भेज देता है and doesn't want to accept it. That is why it's called as a rejection. The body is rejecting the foreign particle. Why? What is foreign? वो भी एक टिश्यू है, but body का टिश्यू नहीं है, किसी और का लिवर है, किसी और का किडनी है. So then it rejects the tissue. So this is called as the graft rejection. Okay, if the body, what type of response is one where the body cannot differentiate self and non-self. If the body cannot differentiate self and non-self, okay, and then उसके कारण उसको रिजेक्ट नहीं, सेपरेट नहीं कर पाता है, तो क्या होता है? It starts attacking your own bodies because it cannot differentiate. कभी इन्फेक्शन आता है, ओके, ड्यू टू सम प्रोसेस, और बॉडी को पता नहीं चलता है कि कौन सा टिश्यू क्या है, कौन सा वायरस है, या बॉडी का टिश्यू और वायरस टिश्यू दोनों प्रोटीन एक ही तरह
लग सकता है, then in that case the body attacks our own tissues and that is called as autoimmunity. So when it cannot differentiate, अगर पूछेंगे cannot differentiate, उसको autoimmunity बोलते हैं. autoimmunity, इससे autoimmune disease आता है. okay, then that is why cell mediated immunity can differentiate between बाहर का और खुद का. तो उसी के लिए हमें मैचिंग चाहिए, इतना अच्छा मैचिंग चाहिए कि जैसे कि ब्लड डोनेशन में आपका ब्लड डोनेशन जो है, ब्लड डोनर ग्रुप जो है, यू नीड इट टू बी प्रॉपरली मैच्ड, है कि नहीं. सो ये ब्लड डोनेशन के बारे में सेपरेट आपको पता है, यू कैन गो थ्रू इट और वी कैन हैव अ सेपरेट क्लास अबाउट इट. तो मैचिंग डोनर चाहिए, उसी तरह मैचिंग टिश्यूज चाहिए. जब आपको लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट होता है तो आपको मैचिंग डोनर चाहिए एंड मैचिंग इज डन यूजिंग व्हाट इज कॉल्ड एज HLA टाइपिंग. इसको HLA टाइपिंग करके बोलते हैं, जहाँ पे HLA एंटीजन, इट्स अ टाइप ऑफ एंटीजन, ह्यूमन लिम्फोसाइट एंटीजन, जिसको चेक करके हम पता सकता है कि ये मैचिंग है नहीं मैचिंग है. ओके, तो अक्वायर्ड इम्यूनिटी में आपको पैसिव इम्यूनिटी है, एक्टिव इम्यूनिटी है, और दोनों में नेचुरल और आर्टिफिशियल है. पैसिव यानी कि क्या, ड्यू टू एंटीबॉडीज. ओके, सीधा एंटीबॉडीज हम किसी और से दे मिलता है, उसको पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं. ओके, जैसे कि माँ से बच्चे को आता है एंटीबॉडीज, मैटरनल एंटीबॉडीज. ओके, या एंटीबॉडीज सीधा आपको इंजेक्शन में लेते हैं. एंटीबॉडीज, टेटनस एंटीबॉडीज है, या स्नेक का एक्सीडेंट हो गया, स्नेक का बाइट आ गया, तो उसका एंटीवेनम जो है वो एंटीबॉडीज़ होता है, वो सीधा आपको अंदर ब्लड में इंजेक्शन के बाहर आता है. एक तरह का इसको मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ भी बोलते हैं. और ये एंटीबॉडीज़ जब अब सीधा आपको मिलता है, ये पैसिव होता है, वो उस टाइम के लिए काम करता है बस. बट एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, बॉडी खुद अपना एंटीबॉडीज़ और बॉडी मैकेनिज्म बना लेता है, तो इसको हम एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं. ये नेचुरली आपको इन्फेक्शन हुआ उससे हो सकता है, या इन्फेक्शन नहीं हुआ आपको वैक्सीन दिया गया है. कब वैक्सीनेशन देते हैं तो एक कोई डेड बैक्टीरिया, अटेन्यूएटेड वायरस डेड हो सकता है या तो पार्शियली लाइव, बट उसका हमने सिवियरिटी, वायरुलेंस जो है, वो जो बैक्टीरिया का मल्टीप्लाई करने का चांस है उसको कम कर दिया है, तो उसको अटेन्यूएटेड बोलते हैं. तब इस तरह का मटेरियल को इंजेक्ट करते हैं, उसको हम वैक्सीनेशन बोलते हैं. उसके कारण आपका बॉडी का इम्यूनिटी बढ़ता है. ओके, सो दिस इज अ टाइप ऑफ अ एक्टिव इम्यूनिटी, जो हमने बोला है कि एक इन्फेक्शन से और दूसरा आपको वैक्सीनेशन से. ओके, सो दीज आर द टू थिंग्स पॉसिबल. जब नेचुरली हमें मिलता है, जैसे कि बोला IgG मदर के प्लेसेंटा से आता है. ओके, फीटस को जब जाता है वो IgG होता है. जो मदर के मिल्क से आता है वो हमें कोलेस्ट्रम IgA से आता है. So these are two things you should remember. प्लेसेंटा से जो आता है G, और मदर्स मिल्क से जो आता है A. एंटी टेटनस, जैसे कि एंटी टेटनस सीरम था, यानी कि उसको एंटीबॉडीज, वो सीरम यानी कि जो प्लाज्मा से मिला के ब्लड सेल्स निकाल के जो ट्रांसपेरेंट फ्लूइड रहता है उसको सीरम बोलते हैं, और वहाँ पे एंटीबॉडीज रहता है कि नहीं. सो दिस इज बेस्ड अपॉन पैसिव इम्यूनाइजेशन जो है टेटनस है, whereas एक्टिव इम्यूनाइजेशन इज ड्यू टू इन्फेक्शन. ओके, और दिस इज बेस्ड ऑन द मेमोरी ऑफ द इम्यून रेस्पॉन्स. ओके, अक्वायर्ड इम्यूनिटी हमेशा इज बिकॉज ऑफ द मेमोरी ऑफ द इम्यून रेस्पॉन्स. ओके, सो जब एक्टिव इम्यूनाइजेशन आपको चाहिए वैक्सीनेशन में, तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि आपको या तो इनएक्टिवेटेड पैथोजन, कोई पैथोजन को उसको अटेन्यूएटेड या इनएक्टिव बना देते हैं, या उस पर एंटीजेनिक प्रोटीन रहता है, वो पैथोजन का प्रोटीन रहता है, और वो हमें इंजेक्ट करते हैं, उससे आपका वैक्सीनेशन मिलता है. जैसे कि डिफरेंट पोलियो वैक्सीन जो है. ओके, पोलियो वैक्सीन में आपको दो तरह का वैक्सीन याद रखना है, एक ओरल पोलियो वैक्सीन और दो इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन. ओके, साल्क और सेबन. ओके, इसमें साल्क और सेबन होता है. ओके, सो जो साल्क वैक्सीन है वो किल्ड वैक्सीन है, और जो सेबन वैक्सीन है
वो ओरल पोलियो वैक्सीन है। ओके, सो ये याद रखना कि साल्क इज किल्ड, साल्क इज किल्ड बिकॉज उस पर के है, और सेबिन इज योर ओरल पोलियो वैक्सीन। ओके, the other types of vaccines are like for example DPT vaccine। DPT क्या है? for 3 infections, diphtheria, pertussis और tetanus। डिप्थीरिया क्या है? थरसक खांसी जो होता है, खाला खांसी जो बोलते हैं उसको डिप्थीरिया। परट्यूसिस वो भी वूपिंग कॉफ, तो परट्यूसिस को खाला खांसी बोलते हैं, जो प्रोड्यूसेस बिकॉज ज़्यादा खांसी होता है उसमें, जोर जोर का खांसी जो होता है इसको परट्यूसिस बोलते हैं। जब गला पर इन्फेक्शन होके गला बंद जाता है, गला घोंट, उसको डिप्थीरिया बोलते हैं। और टेटनस आपको पता है कि बिकॉज ऑफ कहीं फॉरेन बॉडी लग गया, कोई इन्फेक्शन हो गया ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरिया, इन्फेक्शन है वो क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी बोलते हैं, तो वहाँ से आपको टेटनस इन्फेक्शन आता है। ये वैक्सीन आपको याद रखना है कि हेपेटाइटिस बी, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन कहाँ से आता है। ये produced by recombinant technology। How do you produce hepatitis B vaccine? Due to recombinant technology from, कहाँ से आता है? yeast। ये क्वेश्चन आपको लास्ट ईयर पूछा गया था कि इट वॉज कमिंग फ्रॉम रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी यीस्ट। ओके, याद रखना, ये फिर से भी पूछा जा सकता है, मल्टीपल चॉइस में पूछा जा सकता है। ओके, and passive is because of preformed antibodies, and example are tetanus का एंटीवेनम या स्नेक का एंटीवेनम, जैसे मैंने बोला सीरम रहता है और सीधा इस पर इम्यूनोग्लोबुलेंस होता है। ये इम्यूनोग्लोबुलेंस बना के स्नेक का एंटीवेनम, जो कि देखो यहाँ पे लिखा है इक्वाइन इम्यूनोग्लोबुलिन, तो ये क्या है कि जिस तरह से हॉर्स में इन्फेक्शन, स्नेक बाइट के कारण इन्फेक्शन आ जाता है और स्नेक का वेनम के अगेंस्ट इंजेक्ट करके वहाँ पे हॉर्स से इम्यूनोग्लोबुलिन बना के वो इम्यूनोग्लोबुलिन हम इंजेक्ट करते हैं ह्यूमंस में कि यू डेवलप अ इम्यूनिटी टू द स्नेक वेनम। ओके, एलर्जी जो है वो भी एक तरह का एक्टिव इम्यूनिटी है, जहाँ पे आपको IgE इम्यूनिटी आता है, और IgE का इम्यूनिटी जब आता है तो इट प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ रिलीज ऑफ सर्टन केमिकल्स। ओके, क्योंकि IgE जब अटैक होता है वो जाके बाइंड हो जाता है ओके टू दी एलर्जन, और ये दोनों मिला के जाके बाइंड हो जाता है टू दी मास्ट सेल। विच टाइप ऑफ सेल? द बाइंड्स टू मास्ट सेल। मास्ट सेल क्या है? दे आर लाइक मैक्रोफेजेस जैसे बड़े बड़े सेल्स होते हैं, जो मास्ट सेल है उसको अटैक करके वहाँ पे वो रिलीज करता है हिस्टामिन और सेरोटोनिन। व्हाट डज इट रिलीज? histamine and serotonin, and these are chemicals which produce allergic reactions। ये histamine के कारण आपको सर्दी पड़ जाती है, you tend to sneeze a lot, due to serotonin puffiness बनता है, swelling बन जाता है, समझो कि there is a bee sting, तो immediately क्या होता है वहाँ पे सूजन आ जाता है। So this is basically a process to prevent the allergen from spreading outside। तो मास्ट सेल से हिस्टामिन और सेरोटोनिन आता है, उसको also ल्यूकोट्रिन करके बोलते हैं। ओके, करेक्ट। सो दिस कैन लीड टू डिफरेंट थिंग्स लाइक आस्थमा जो आता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग आता है, वीजिंग होता है, स्किन रैशेस, रनिंग नोज, वाटरिंग ऑफ द आईज, ऑल दीज आर साइंस ऑफ अ एलर्जिक रिएक्शन। ओके, आस्थमा जैसे कि हमने बोला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आस्थमा आ सकता है। ओके, एंड मॉडर्न डे लाइफस्टाइल रिजल्ट्स इन लोअर इम्यूनिटी एंड मोर सेंसिटिविटी टू द एलर्जेंस। और मेट्रो में देखो बहुत लोगों को ज़्यादा आस्थमा होता है ड्यू टू पोल्यूशन, है कि नहीं? ओके, और जहाँ पे बॉडी इज़ नॉट एबल टू रिकग्नाइज सेल्फ एंड नॉन सेल्फ बिकॉज द बॉडी अटैक्स दी सेल्फ सेल्स। बॉडी का ही सेल्स जब अटैक होता है तो उसको हम ऑटो इम्यूनिटी बोलते हैं। अटैक्स दी सेल्फ सेल्स बिकॉज कैनॉट डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। ओके, बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट फ्रॉम सेल्फ सेल्स। सो जब ये मेमोरी जो
कम हो जाता है either due to unknown reason or due to genetic reasons, then it is called as autoimmunity because the body cannot differentiate. उसके कारण अपने खुद के सेल्स पर अटैक होता है, जैसे कि टिश्यूज जॉइंट्स पे अटैक होता है तो बोन का एरोशन होके हमें डिफॉर्मिटीज आने लगता है, उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं. थायराइड का डिजीज़, थायराइड डिजीज भी ऑटो इम्यूनिटी के कारण आ सकता है. ओके, सिमिलरली रूमेटॉइड आर्थराइटिस. ओके, कुछ कोलेजन वैस्कुलर डिसऑर्डर्स बोलते हैं, वो भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं. ओके, good. So with this we will complete this part of the chapter. We will go to the next part of the chapter, that is AIDS, in the next lecture. जाते जाते आपको एक क्वेश्चन चाहिए जो पूछा गया था लिवर जिपमर के एग्जाम्स में. मैक्रोफेजेस जो है वहाँ पे what is the name of the macrophages in the liver? Tell me what is the macrophage. okay, जो phagocytic cells है in the liver called macrophage. In the liver, what is it called? Okay, so this is a question for you. We will come back and see the next portion of the chapter soon. Okay, मिलते हैं. All the best. See you from Anand.